Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333386. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 4 और 5 दिसंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए रिवीजन के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, एज वेल एज जो आज के नई करंट अफेयर्स हैं उसके लिए भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कुछ रिवाइज करते हैं करंट अफेयर्स। जैसे अगर हम बात करें नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे की, कब ऑब्जर्व किया जाता है? आपका 2 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा कि अगर आप देख रहे हैं अभी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्लाइमेट चेंज का आप इफेक्ट अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, आप उसको फील कर पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एनवायरनमेंट को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए आप देखेंगे कि डेली कुछ ना कुछ नई स्कीम आती रहती है और कोई ना कोई सरकार कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करती रहती है ताकि हम अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें और इन्वायरमेंट को एक बेटर प्लान बना सके। इवन अगर आप दिल्ली की न्यूज़ देखेंगे तो दिल्ली में पॉल्यूशन के बढ़ते अभी जो सारा इंडस्ट्रियल वर्क है उसको रोक दिया गया है। तो कमिंग बैक, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर 2 ही दिसंबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे याद रखेंगे, वो है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी डे? क्योंकि कंप्यूटर आज की दुनिया में ऐसी चीज़ है जिसको बच्चों को आना ही चाहिए, लोगों को आना ही चाहिए, इसकी स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप सस्टेन कर पाएंगे इन द जॉब्स मार्केट। आपको जॉब मिलेगी अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं, तब आपको कोई ना कोई अच्छी जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। तो ये दोनों चीज़ आज की दुनिया की हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो क्या, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को, और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ये भी आपका 2 दिसंबर को ही ऑब्जर्व करा जाता है। चलिए फिर आ जाते हैं, इंडिया ने अज्यूम किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी को फॉर दिसंबर 2022, और याद रखेंगे ये सेकंड टाइम है। एक साल पहले भी इंडिया ने अज्यूम किया था इन द अगस्त 2021 प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और अब फॉर द सेकंड टाइम इन द पास्ट 1 और 2 ईयर्स इंडिया ने सेकंड टाइम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी को अज्यूम करा है। G20 की भी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास होगी 1 दिसंबर से लेके 2022, 1 दिसंबर से लेके 30 नवंबर 2023 तक इंडिया के पास प्रेसिडेंसी होगी G20 की। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर बात करते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 के बारे में। किस बुक को इस अवार्ड से कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज से सम्मानित किया गया? वो है द चिपको मूवमेंट। और ऑथर कौन रहेंगे इस चिपको मूवमेंट के? वो है बुक के द चिपको मूवमेंट के, यह है शेखर पाठक। अगर चिपको मूवमेंट एज अ होल की मैं बात करूं तो ये
1973 में लॉन्च की गई थी। और यहाँ पे इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था इंडिया में? फादर ऑफ चिपको मूवमेंट कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। और वैसे अगर देखूं मैं, चिपको मूवमेंट था क्या? आप पेड़ जो होते हैं ना, आपके पेड़ों से लोग चिपक जाते थे, उनको हक कर लेते थे ताकि उसकी काटा ना जा सके। ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट था कि पेड़ों को मत काटो, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये था आपका चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन, इनके द्वारा अभी एक डिजी यात्रा लॉन्च किया गया और ये 3 एयरपोर्ट्स में लॉन्च किया गया था इन द कंट्री। बट बेसिक चीज़ आपको याद रखना है, कहाँ पे लॉन्च किया गया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहाँ पे ये लॉन्च किया गया था न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन की मदद से आपको एंट्री मिल जाएगी ड्यूरिंग दिस यूजिंग दिस डिजी यात्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही है कि आपके फेस रिकॉग्निशन की मदद से आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी। आईसीजी ने इंडियन कोस्ट गार्ड में चेन्नई तमिलनाडु में अभी रिसेंटली एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को कमीशन किया है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर करा गया है। किसके द्वारा कमीशन किया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कमीशन किया गया। कहाँ कमीशन किया गया? चेन्नई तमिलनाडु में इसको कमीशन करा गया है। मूविंग ऑन, गरुड़ा शक्ति की बात करें तो ये ऐसे पूछा जाएंगे कि गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट कराई गई, किसके बीच में कंडक्ट कराई गई, वो बताओ। इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उस स्टेट का नाम बताओ जिन्होंने अभी एक टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की है ताकि वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दे सके। तो वो रहेगा असम। ऐसे अगर आप याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था स्विट्जरलैंड का, ताकि इंडिया वहाँ पे इंडियंस को प्रमोट किया जा सके कि वो स्विट्जरलैंड जाके विजिट करें और ट्रैवल एंड टूरिज्म वहाँ पे बढ़ सके स्विट्जरलैंड में। सिमिलरली अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी एक एमओयू साइन हुआ था ताकि एक दूसरी कंट्रीज के बीच में हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें। कमिंग टू द नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। ये वो कंपनी है जो टॉप 3 में आई इन सस्टेनेबल कंपनीज इन योर मेटल माइनिंग सेक्टर वर्ल्ड में। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन हो जाता है एशिया पैसिफिक रीजन में वो कौन सी कंपनी है जो टॉप पे रही इन सस्टेनेबल कंपनीज इन मेटल माइनिंग सेक्टर, तो वो आपकी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड रहेगी जो फर्स्ट पोजिशन पे रही इन द एशिया पैसिफिक रीजन और टॉप 3 में रही इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंपनीज इन मेटल माइनिंग सेक्टर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जीडीपी की। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें फॉर फिस्कल ईयर 23 तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा डिफरेंट डाटा प्रेजेंट किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये रेड में है ना, तो ये अपडेटेड डाटा है और जो ब्लू में है वो पुराना डाटा होगा। पुराना डाटा को अपडेट करके नया डाटा है और आप देखेंगे जो ट्रेंड दिखा रहा है कि जो नया डाटा है ना वो कहीं ना कहीं कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ जो हमारा पुराने प्रोजेक्शन थी वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। रीज़न हम जानते ही हैं, वॉर लाइक सिचुएशन, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, रिसेशन की बातें आ रही हैं और जो जियोपॉलिटिक्स प्ले करती है इनकी वजह से भी हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है प्राइसेस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसबीआई के द्वारा जो प्रोजेक्शन की गई है 6.8% की गई है जो लेटेस्ट, वर्ल्ड बैंक के द्वारा 6.5, ओईसीडी के द्वारा 6.6, आईएमएफ के द्वारा 6.8, फिच रेटिंग्स के द्वारा 7%, इंडिया रेटिंग्स के द्वारा 6.9, एशियन डेवलपमेंट बैंक 7, आरबीआई के द्वारा 7। यहाँ पर एक और ऐड करेंगे मूडीज़ ने जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया अभी 7% किया और जो पहले करी थी वो थी 7.7%, अब वो रिड्यूस करके कितनी कर दी है 7%। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं, ये तो थे हमारे रिवीजन के जो पुराने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब आ जाते हैं जो हमारे आज के करंट अफेयर्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। हम देख रहे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना पिछले 3 महीने का वो बढ़ता जा रहा है। अगर यहीं पे हम देखें, ये डाटा रिलीज़ किया गया सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के द्वारा ये डाटा रिलीज़ किया गया और इसमें बताया इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना इंक्रीज्ड टू अ 3 मंथ हाई एट 8% ड्यूरिंग नवंबर 2022, मतलब पिछले 3 महीने का हाईएस्ट रहा है 8% पे। यहीं पर अगर हम बात करेंगे अर्बन एरियाज़ की, अर्बन एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो बढ़ गया है टू 8.96%, जो कि पहले था 7.21% इन अक्टूबर 2022 और ये अब बढ़ गया है। यहीं पे अगर हम देखें रूरल एरियाज़ की, रूरल एरियाज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो कम हो गया है। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 7.55%, जो कि पहले था 8.04%।
ठीक। फिर अगर हम बात करें इंडिया के ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि दैट वाज एट 7.7%, वाइल इन सितंबर 2022 इट वाज लो एट 6.43%, और अक्टूबर में 7.77% हो गया है, और अब दिसंबर के नवंबर महीने में आप देखेंगे ये बढ़कर 8% तक जा चुका है। ऑलराइट, ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया था? CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा, जिसके अगर मैं बात करूं मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, वो है महेश व्यास, और यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? CMIE का, यह है मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट अमेंडमेंट बिल को अप्रूवल मिल गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम का। इन्होंने अप्रूव कर दिया है महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल को। ये अमेंडमेंट जो है ना आपका रीडेवलपमेंट ऑफ द डेंजरस और डायलेपिडेटेड महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को, जो कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो गई, उनकी रीडेवलपमेंट में ये काम करेगा। और वहाँ पे जो डेंजरस हैं, जहाँ पे मतलब आप देख रहेंगे झड़ रही हैं, बिल्डिंग झड़ रही हैं, जो सोसाइटीज़ की जो बालकोनीज है वो झड़ने लग रही हैं, और वहाँ पर उनका रीडेवलपमेंट का काम किया जाएगा। इवन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी चल रही है वो क्या है? धारावी। धारावी क्या है? ये वर्ल्ड का बिगेस्ट स्लम एरिया है और एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग पूरी दुनिया से यहाँ पर धारावी को देखने आते हैं कि हाउ द पीपल लिव। बहुत छोटे से एरिया में स्लम एरिया है और ये बहुत छोटे से एरिया में ही काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इसके रीडेवलपमेंट का अभी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था अडानी ग्रुप को, मतलब बिडिंग हुई, उसके लिए बोली लगी और अडानी ग्रुप ने ही आपका कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग बात सामने निकल के आ रही है कि जो लोग हैं धारावी के, वो अब यहाँ पे धीरे धीरे प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड दे डोंट वांट कि उनके एरिया को यहाँ पर रीडेवलप किया जाए। रीज़न बीइंग वो चाहते हैं कि जो ये इनका स्लम एरिया ना, ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड और एक बहुत ज़्यादा फेमस पॉपुलर एरिया है जहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग इनको देखने आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इनकी रीडेवलपमेंट कर दी जाएगी तो इनको एक एक फ्लैट दे दिया जाएगा, जो इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। उनको लगता है कि जो ये पॉपुलर रहते हैं इन चीज़ों से, वो ज़्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है। किसी भी, जैसे आप किसी मॉन्यूमेंट पे जाते हैं तो वो एक स्टेटस सिंबल होता है पर्टिकुलर एरिया का, वो एक हिस्ट्री को डोनेट करता है। तो सिमिलरली धारावी एक हिस्ट्री के तौर पर रहना चाहती है, और वहाँ के लोग, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इस रीडेवलपमेंट के खिलाफ हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, SIPP। SIPP क्या है? स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। हम जानते हैं IP क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर एक हो जाता है आपका पेटेंट्स। ठीक, ये क्या होता है बेसिकली? आपको जब भी आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, सेम एग्जांपल आपने ABC नाम का कोई प्रोडक्ट डेवलप किया, वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इन द मार्केट। किसी के उन्होंने वैसा प्रोडक्ट अभी तक डेवलप नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? इसका जाके पेटेंट करा लेंगे। मतलब आपने इसको पेटेंट करा लिया और इसको 10 साल तक अब कोई भी दूसरा इंडिविजुअल इस प्रोडक्ट को डेवलप नहीं कर सकता। अगर कोई भी इंडिविजुअल ऐसे प्रोडक्ट को डेवलप करता है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, जो कि एक आपका राइट बनता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के सोल राइट्स आपके पास हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को अगर आपका वो प्रोडक्ट यूज़ करना है या वैसे सिमिलर प्रोडक्ट यूज़ करना है तो उसको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ठीक है, उसके जो फीस लगती थी उसको अबाउट 100% से बढ़ा दिया गया है। ये याद रखेंगे। रीज़न क्या रहेगा इसको बढ़ाने का? कि द रिवीजन वॉज इंटेंडेड टू एंकरेज जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेटर्स हैं उनको प्रोवाइड की जा सके क्वालिटी सर्विसेज टू स्टार्टअप्स इन ऑर्डर टू बूस्ट द नंबर ऑफ IP एप्लीकेशन फिल्ड बाय स्टार्टअप्स। और आप देख रहे हैं इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर है वो बढ़ता जा रहा है, एंड जो स्टार्टअप्स हमें देखने को मिल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से स्टार्टअप देखने को मिल रहे हैं। ये जो अपडेटेड स्कीम है जिसमें हम देखेंगे जो फैसिलिटेशन फीस है उसको एटलीस्ट 100% से बढ़ा दिया गया है। इसको ये इफेक्टिव होगी फ्रॉम 2 दिसंबर 2022। ठीक, यहाँ पे आप पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर। फिर SIPP, ये क्या है? SIPP अभी हमने देखा स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन। ये आपका स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ये कब लॉन्च किया गया था? 2016 में इसको लॉन्च किया गया था टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ स्टार्टअप्स, ताकि जो आपकी इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, उसको एंकरेज किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रोन से रिलेटेड।
हम जानते हैं जो ड्रोन्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो हमारा बंद है, हम कोई भी इंपोर्ट नहीं कर सकते ड्रोन को इररिस्पेक्टिव ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक, तो ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर Product Link Incentive Scheme for drones and drone components has been notified by Ministry of Civil Aviation। अब ये PLI स्कीम क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब जब भी आप ड्रोन को प्रोडक्ट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उसके पार्ट्स को बनाएंगे, तो सरकार आपको कुछ इंसेंटिव देगी कि जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो यही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अभी लॉन्च की गई, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस लॉन्च की गई हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। इन गाइडलाइंस के हिसाब से बताया गया है कि पीएलआई स्कीम में जो होगा ना 120 करोड़ रुपए की यहाँ पे फंडिंग हमें देखने को मिलेगी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2023 से लेके 24-25 के पीरियड में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और द टोटल पीएलआई फॉर ईच मैन्युफैक्चर इज 30 करोड़ रुपीस तक का उनको हर मैन्युफैक्चर को दिया जाएगा, जो कि 25% है ऑफ फाइनेंशियल आउटले ऑफ 120 करोड़ रुपीस। मतलब इतने तक का दिया जाएगा, इतना दिया नहीं जाएगा। ठीक है, फिर इसके लिए कुछ ज़्यादा अलग अलग स्पेसिफिकेशंस लॉन्च की गई, जैसे This PLI will be extended only to companies in India that manufacture drones and drone components। फिर टोटल PLI फॉर ईच मैन्युफैक्चर इज 30 करोड़ रुपीज, जो कि 25% होगा टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ 120 करोड़ रुपीज। इसी के साथ साथ द स्कीम इज ओपन टू MSME सेक्टर, ठीक है, एंड स्टार्टअप्स इन इंडिया जो कि ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर्स करते हैं और उनका जो सेल का टर्नओवर है 2 करोड़ रुपीज से ज्यादा का है। एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन्स कंपोनेंट्स विल बी 0.5 करोड़ रुपीज। ऑलराइट, तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको कुछ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उनको कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए ही ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा पीएलआई स्कीम की कुछ गाइडलाइंस लॉन्च करी गई हैं। नेक्स्ट हम एक रिपोर्ट की बात करेंगे जो कि ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2022 की। इसमें बताया गया है कि जो आदिवासी लोग हैं वो उनको एरिया को डेवलप करने के लिए अगर हम देखें तो वो एकदम बॉटम में आते हैं इंडिया के डेवलपमेंट पिरामिड के। आई रिपीट, ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 लॉन्च की गई भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है आदिवासीज की, और इनके द्वारा बताया गया कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है ना आदिवासीज की, वो एकदम बॉटम में आती हैं जब हम इंडिया के डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक, मतलब जहाँ पे आदिवासी रहते हैं वहाँ पे लीस्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। बट आपको इसको ये भी ऐसे समझना पड़ेगा कि एक डेवलपमेंट का एरिया वहाँ पे होता है जहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल की अगर हम सिटी बनते हैं, और हम जानते हैं अगर कोई एरिया एक प्लान्ड सिटी बनाए जाते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एंड ग्रोथ का भी स्कोप वहाँ पर रहता है। तो सिमिलरली याद रखेंगे, इस डाटा में बताया गया कि जो आदिवासीज हैं वो आर एट द बॉटम ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पिरामिड। सिमिलरली याद रख सकते हैं, पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी सेंटर, ये कहाँ पे खोला गया था? उड़ीसा में खोला गया था, जहाँ पे ट्राइबल हेल्थ जो है, ट्राइबल पीपल्स हैं, जो ट्राइब्स के लोग हैं, उनकी हेल्थ का डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट हम एक रिपोर्ट की बात करेंगे, टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, अ डेवलपमेंट अप्रोच टू सॉल्यूशन। ये अभी रिपोर्ट रिलीज की गई और जिसमें बताया गया कि अराउंड 100 मिलियन पीपल 2021-22 में अलोन इन्होंने डिस्प्लेस किया, 2022 में अलोन इन्होंने डिस्प्लेस किया, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। रीज़न क्या हो सकता है? यहाँ पे आप देखेंगे कन्फ्लिक्ट, यहाँ पे आप रीज़न क्या देख सकते हैं? वॉर जो चल रही है, फेमिन कह सकते हैं, यहीं पर आप रीज़न बोल सकते हैं नेचुरल क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक, जैसे अगर आपने देखा अभी, अगर मैं पाकिस्तान की ही बात करूं, पाकिस्तान में आपने देखा बहुत ज़्यादा फ्लड आ गई थी, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पाकिस्तान पानी के अंदर था। तो उसके टाइम पे आपने देखा काफ़ी ज़्यादा लोग अपने घर से डिस्प्लेस हो गए थे, क्योंकि जहाँ पर पानी था लोगों के घर तबाह हो गए, बहुत बड़े अमाउंट में लोगों के घर तबाह हुए हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर गए। अब आप देखेंगे कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं तो जो दूसरी जगह होती है ज़रूरी नहीं वहाँ पर आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिले जो आपको पहले मिल रही थी, जैसे प्रॉपर फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन के लिए, क्या वहाँ पर बिजली है, क्या आपका जो घर है वो सेफ़ है, क्या जहाँ एरिया में आप रहते हैं क्या वो लोकल एरिया सेफ़ है या नहीं, ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपको घर बदलना है, आप अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाना चाहते हैं, तो आप दूसरे घर में जाने से पहले आप वहाँ पर देखेंगे कि जो नया घर है क्या वहाँ पर प्रॉपर
फैसिलिटीज़ मिल रही है नहीं मिल रही, बिजली मिल रही है नहीं मिल रही, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, खाने की दिक्कत तो नहीं होगी वहाँ पे, आसपास मेडिकल शॉप्स हैं या नहीं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें हैं या नहीं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सिमिलरली आप समझ सकते हैं जो जीने के लिए बेसिक नेसेसरी चीज़ होती है वो क्या होता है, 2 वक्त का खाना, एक घर पे छत मिल जाए और कपड़े मिल जाए और पानी मिल जाए साफ, तो यही चीज़ें देखी जाती हैं। तो आप ये देखिए जो लोग अपने घर छोड़ के जाते हैं, जो नेचुरल क्लाइमेट की वजह से या जिनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, फोर्सफुली डिस्प्लेस कर दिया जाता है कि आप यहाँ से हट जाओ, उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो यही डाटा भी रिलीज किया गया कि मोर देन 100 मिलियन पीपल वर फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड इन 2022 अलोन। और ये डाटा प्रिपेयर किया गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की मदद से इस डाटा को रिलीज करा गया। और ये जो डाटा गैदर किया गया है जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक का ये डाटा रहेगा। ठीक है, जैसे अगर आप देख सकते हैं अभी यूक्रेन में जो वॉर चल रही है, तो यहाँ के लोग दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को सेफ नहीं मानते यहाँ पर, तो ये एक वॉर की वजह से हो गया। इवन रशिया में अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा रशियंस अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हैं, रीजन बिंग दे डोंट वांट टू बी इन दैट कंट्री। चाइना में आप देखेंगे जो बड़े बड़े रिच बिजनेसमैन हैं वो अपनी पॉलिसी से, चाइना की पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है और वो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्रीज में भी शिफ्ट कर रहे हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे आरबीआई के द्वारा अभी एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, हमने पढ़ा था ई रूपी के बारे में। ई रूपी, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज फैक्ट बता देता हूं, जो आपका ई रूपी है और जो नॉर्मल रूपी है इसमें डिफरेंस क्या रहेगा। नॉर्मल रूपी को जब अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं ना, तो वहां पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, 2 या 3% का बैंक इंटरेस्ट देता है कि आप हमारे बैंक में पैसा रखो। लेकिन अगर ई रूपी रखेंगे यहाँ पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक, अभी ये पायलट प्रोजेक्ट पे लॉन्च की गई है, कुछ 3-4 जगह पे इसको लॉन्च किया गया। आइए इसके बारे में देखते हैं। 1.71 करोड़ रुपीस की डिजिटल करेंसी क्रिएट की गई आरबीआई के द्वारा भी रिसेंटली, और ये रिटेल पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे लॉन्च की जाएगी। 8 बैंकों और 4 सिटीज में इसको लॉन्च किया जाएगा, न्यू दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर और बेंगलोर, इन सिटीज में इसको लॉन्च किया जाएगा। और जो 4 बैंक्स है फर्स्ट पेज में इसको यूज करेंगे, और वो 4 बैंक कौन से रहेंगी, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये 4 बैंक आपके फर्स्ट फेज में इन 4 सिटीज में इस ई डिजिटल रुपी को यूज करेंगी पायलट बेसिस पे। ये एक आपकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, सीबीडीसी है। ठीक, और इसको क्या बोला गया, डिजिटल रुपी फॉर रिटेल सेगमेंट रहेगी ये। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर यहीं पे मैं बात करूं आरबीआई की। आरबीआई कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1935 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को। यहीं पे अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं, मुंबई महाराष्ट्र रहेगा। गवर्नर रहेंगे शक्तिकांत दास और डेप्टी गवर्नर 4 होते हैं आरबीआई के। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया एक डेडलाइन टू लेवी कैप ऑन द डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन। जो यूपीआई की तरह से हमारा ट्रांजैक्शन होता है ना, उसकी वॉल्यूम पे अब 30% का कैप लगा दिया गया है 2 साल के लिए। और ये कब तक होगा, 31 दिसंबर 2024 तक ही आपका कैप रहेगा ऑन ऑल द यूपीआई पेमेंट। जो कैप रहेगा कितना, 30% का। ठीक है, याद रखेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड एबीआईएस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अभी एक एग्रीमेंट साइन हुआ फॉर $16 मिलियन। और ये जो $16 मिलियन का एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, ये बेसिकली क्या है, ये आप माइक्रो फिश फीड प्लांट्स देख रहे हैं, इनको डेवलप करने के लिए। और यहाँ पर क्या होता है, ये नीचे पानी में काफ़ी अंदर तक होते हैं और यहीं पर आपकी फिशेस की ब्रीडिंग की जाती है, फिशेस को बड़ा किया जाता है। ठीक है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है। तो यहाँ पर इन फिश की ब्रीडिंग के लिए फिर कुछ 6000 लोगों को, फार्मर्स को यहाँ पर ट्रेन करने के लिए इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, ताकि फिश ब्रीडिंग की जा सके, यहाँ पे स्किल प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, आई रिपीट, टू एनहेंस द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये $16 मिलियन कहाँ पे लगेंगे, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस माइक्रो फीडिंग और माइक्रो फिश फीड प्लांट में, एंड 6000 फार्मर्स को ट्रेन करने के लिए इन द क्लाइमेट रेजिलिएंट फिश फार्मिंग प्रैक्टिसेस एज वेल एज अ फाइनेंशियल लिटरेसी, उनको प्रोवाइड करने के लिए कैसे क्या करना चाहिए, कैसे उनकी देखभाल करनी है, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो बेसिकली एक एजुकेट कराने के लिए लोगों को, और इनकी प्रोडक्शन को, फिशेस फीडिंग प्लांट है ये, इनको बढ़ाने के लिए ये आपका लॉन्च किया गया। बेसिकली हम कह सकें फिशिंग फार्मिंग को इंडिया में प्रमोट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एंड एबीआईएस एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ये $16 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है।
ऑलराइट, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करूं तो प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? मासात्सुगु असाकावा। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। और यहाँ पे 68 मेंबर्स रहेंगे आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक के। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम अवार्ड्स की बात करते हैं। अभी रिसेंटली अर्थशॉट प्राइज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और ये जो आपका प्राइज है ना, अवार्ड अर्थशॉट प्राइज, ये बेसिकली 5 फील्ड्स में दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर, टू क्लीन आर एयर, टू रिवाइव आर ओशंस, टू बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड, टू फिक्स आर क्लाइमेट। ये बेसिकली 5 आपके गोल्स हैं, ये टॉपिक्स हैं जिस पे बेसिस पे आपका अर्थशॉट प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 विनर्स रहेंगे आपके, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, ये 5 विनर्स रहेंगे जिनको अभी सम्मानित किया गया इस अर्थशॉट प्राइज से। फिर आपको यहाँ ध्यान रखना है किन के द्वारा सम्मानित किया गया? विलियम प्रिंस ऑफ चार्ल्स के द्वारा, प्रिंस विलियम्स के द्वारा, इनके द्वारा ये सम्मानित किया गया इन लोगों को ऑफ द अर्थशॉट प्राइज 2022 के लिए। ये आपका सेकेंड एडिशन रहेगा अर्थशॉट प्राइज का। ठीक है, इसका अवार्ड की सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? MGM म्यूजिक हॉल में इन बॉस्टन USA में आपकी ये सेरेमनी हमें देखने को मिली थी। और याद रखेंगे, इस अर्थशॉट प्राइज के दौरान हर विनर को 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, जो कि अराउंड आ जाता है 1.2 मिलियन डॉलर के हिसाब से, लोगों को पैसे दिए जाएंगे। और 5 विनर्स ऑफ द 2022 अवार्ड्स वर चूजन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 15 फाइनलिस्ट। तो कितने लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? 5 विनर्स रहेंगे यहाँ पर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कैनरा बैंक को बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया 2022 के खिताब से सम्मानित किया गया है। इसी को हम बोल सकते हैं बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। आई रिपीट, बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से किन को सम्मानित किया गया? कैनरा बैंक को। यहीं पे मैं बोल सकता हूँ बेस्ट बैंक ऑफ इन इंडिया फॉर 2022 कौन सा है? कैनरा बैंक रहेगा। और याद रखेंगे, जो ये बैंकर्स बैंक अवार्ड है 2022 का, इसको ऑस्कर अवार्ड फॉर द बैंकिंग सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है किनको मिला है? कैनरा बैंक को मिला है। कहां पर इनको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से? ग्लोबल बैंकिंग समिट, जो कि लंदन में हुई थी, यूके में, 29 नवंबर से लेके 1 दिसंबर के बीच में हुई थी। उसके दौरान कैनरा बैंक को बेस्ट बैंक इन इंडिया 2022 से खिताब किया गया और इन्हीं को बैंकर बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से भी सम्मानित करा गया है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्म कार्ट। फार्म कार्ट के फाउंडर अतुल पटीदार को अभी रिसेंटली प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया 2022 अवार्ड से सम्मानित करा गया। आई रिपीट, प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया 2022 से किनको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से? वो है अतुल पटीदार। ये फार्म कार्ट के फाउंडर हैं। और फार्म कार्ट क्या है? ये आपका सेंट्रल इंडिया का पहला एग्रीटेक इनोवेशन स्टार्टअप रहेगा। और इन्हीं को, अतुल पटीदार को, प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगर हम अतुल पटीदार की बात करें, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इन्होंने फॉर्च्यून 500 मल्टीनेशनल कंपनीज में कनाडा में काम किया है। 4 पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज है इनके पास फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड, जैसे कॉर्नल यूनिवर्सिटी, क्वींस यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। एंड उसके बाद इन्होंने कनाडा इंडियंस के साथ कोलैबोरेट किया विद कैनेडियन इंडियंस टू इस्टेब्लिश फार्म कार्ट, जो कि आपका एक सेंट्रल इंडिया का पहला एग्रीटेक इनोवेशन स्टार्टअप रहेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं CESL, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड की। इनके MD एंड CEO ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया और वो है महुआ आचार्य जी। नेक्स्ट आ जाते हैं विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें। विजय हजारे ट्रॉफी किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है? ये आपकी क्रिकेट से बिलोंग करती है। और यहाँ पर किसने टॉप किया, किसने जीते इस ट्रॉफी को? सौराष्ट्र ने जीता विजय हजारे ट्रॉफी को फाइनल्स में महाराष्ट्र को हरा के। अगर यहीं पे मैं बात करूँ सौराष्ट्र की, ये इनकी सेकंड विजय हजारे ट्रॉफी रहेगी। इससे पहले उन्होंने 2007-8 में ये विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी और अब 2022 में महाराष्ट्र को फाइनल में हरा के विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेटरन ओडिया एक्ट्रेस जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, झारना दास। झारना दास ये एक ओडिया फिल्म एक्ट्रेस थी जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 77 इन कटक उड़ीसा। अगर हम इनकी बात करें, 1997 में झारना दास ने रिसीव किया था स्टेट गवर्नमेंट का प्रेस्टिजियस अवार्ड जयदेव पुरस्कार फॉर हर लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन टू ओडिया सिनेमा इंडस्ट्री। 1945 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपना करियर 1960 में स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। 3 दिसंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। रीज़न क्या है? जो लोगों के पास
जो लोग पर्सन डिसेबल हैं उनकी मदद करने के लिए, उनके समझने के लिए वो भी क्या फील करते हैं, उनका साथ देने के लिए उनका मजाक ना बनाया जाए और उनको हेल्प की जाए, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कैसे भी उनकी हेल्प की जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको थीम याद रखनी है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की रहेगी ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशन इन फ्यूलिंग एन असेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो कि 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं, हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे आज, वो है आपके 21 अनहेबिटेड अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स। इनको नेम किया गया है आफ्टर डेकोरेटेड सोल्जर्स। आई रिपीट, 21 सोल्जर्स को परमवीर चक्र से अभी सम्मानित किया गया, जो कि इंडिया का हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और ये डिसाइड किया गया कि जो 21 अनहेबिटेड आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार एरिया के, वहां पर उन 21 आइलैंड्स को इन डेकोरेटेड सोल्जर्स जिनको ये सम्मानित किया गया है, इनके विवाह पे इन आइलैंड्स की नेमिंग कर दी जाए। ठीक है, डायरेक्ट है, याद रखेंगे। चलिए, फिर एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, कि पूछा जाएगा कि अभी रिसेंटली डिजिटल मेडल्स एज द फॉर्म ऑफ एनएफटी किस स्टेट के द्वारा सम्मानित किया गया लोगों को। वो है आपके डिजिटल मेडल्स टू आइडियल विंग टीम, अभी दिया गया इन द फॉर्म ऑफ एनएफटी बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। आई रिपीट, डिजिटल मेडल्स दिए गए हैं आपके एनएफटी फॉर्मेट में। एनएफटी क्या होता है? नॉन फंजिबल टोकन्स। आप सब जानते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो आपको एनएफटी के बारे में भी पता होगा। इमेजेस आ गई थी बीच में कुछ जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी, जिसके बेसिस पे क्या है कि वो आपके राइट्स को सम्मानित दिखाते हैं कि ये पर्टिकुलर पिक्चर आपके राइट है, आपके पास है। तो सिमिलरली ऐसे डिजिटल मेडल्स ऑनर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एनएफटी, तमिलनाडु पुलिस ने is the first police unit in the world to mint SBTs, a non-fungible token in the form of NFT as digital medals। ठीक है, डिजिटल मेडल्स के फॉर्मेट में, एनएफटी के फॉर्मेट में डिजिटल मेडल्स दिए गए तमिलनाडु स्टेट के द्वारा, या फिर अगर पूछा जाए तमिलनाडु पुलिस के द्वारा, और ये फर्स्ट पुलिस बन गई इन द वर्ल्ड टू डू सो। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो दोस्तों ये तो थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेज 3 month high at 8% in November 2022 as per CMIE data. Maharashtra's Housing and Area Development Act Amendment Act bill gets President's approval. Government of India ने रिवाइज किया स्कीम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन टू अपग्रेड प्रोफेशनल चार्जेस ऑफ फैसिलिटेटर्स। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर ड्रोन PLI स्कीम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेमिनिस्ट डॉक्यूमेंट एज पर CJI डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड। देन ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज की गई, और जो आदिवासीज हैं वो एट द बॉटम ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पिरामिड है। देन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट रिलीज की कि जो नंबर ऑफ पीपल फोर्सफुली डिस्प्लेस किए जाते हैं वो रिकॉर्ड हैं इस बार 2022 में 100 मिलियन इन्होंने डाटा टच कर दिया है। फिर RBI के द्वारा ही एक डिजिटल रुपी रिलीज किया गया और 4 सिटीज़ में इसको लॉन्च किया जाएगा। फर्स्ट फेज में 4 बैंक इसको यूज़ करेंगे एंड इनके लिए अभी 1.71 डिजिटल रुपीज़ जनरेट करे गए हैं। देन NPCI ने एक्सटेंड कर दी डेडलाइन टू लिव 30% कैप ऑन डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन टिल 31 दिसंबर 2024। एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड ABIS एक्सपोर्ट लिमिटेड इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया $16 मिलियन का टू सपोर्ट फिशिंग फार्मिंग इन इंडिया। अर्थ शॉट प्राइज की 2022 की बात करें, ये आपका सेकेंड एनुअल अर्थ शॉट प्राइज था जो कि प्रिंस विलियम्स के द्वारा अनवेल किया गया और 5 लोगों को इससे सम्मानित किया गया था। कैनरा बैंक ने भी बैंकर बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता और इंडिया का बेस्ट बैंक भी ये घोषित किया गया एट द ग्लोबल बैंकिंग समिट 2022 जो कि लंदन में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की बात करें, फार्म कार्ट के फाउंडर अतुल पटीदार, इन्होंने अभी प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया 2022 अवार्ड को जीत लिया, याद रखेंगे। फिर इंडिया टू अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ वासिनार एग्रीमेंट ऑन 1 जनवरी। G20 की प्रेसिडेंसी भी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी फॉर दिसंबर मंथ 2022 भी इंडिया के पास ही रहेगी। फिर आ जाते हैं महुआ आचार्य जी, इनका निधन हो गया। ये MD एंड CEO थी फॉर CESL। फिर विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल की बात करें तो सौराष्ट्र ने जीत लिया महाराष्ट्र को हरा के।
वेटन ओडिशा एक्ट्रेस झारना दास, इनका रिसेंटली निधन हो गया। फिर बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 21 अनहेबिटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को अभी नेम किया आफ्टर डेकोरेटेड सोल्जर्स। देन तमिलनाडु वो पहला स्टेट, और ये इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेट या फिर तमिलनाडु की पुलिस के द्वारा एनएफटी के फॉर्मेट में डिजिटल मेडल से सम्मानित किया गया टू आइडल विंग टीम मेंबर्स। सो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलराइट, काफ़ी अच्छा सेशन था फ्रेंड्स आज का। आई होप आपको चीज़ें समझ आई। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पे। पहला, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को डेवलप किया गया है, ज़रा बताओ, बताया है मैंने आपको। देन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन, ये एक एग्रीमेंट है फॉर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किस कंट्री के साथ। तीसरा, व्हाट इज द ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022, बताइए ज़रा। फोर्थ, वासेनार एग्रीमेंट, ये अभी न्यूज़ में था, इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, किस फील्ड के साथ एसोसिएटेड है। पांचवा, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। कमेंट करके ज़रूर बताना, चीटिंग मत करना, आपकी रिवीजन ज़्यादा अच्छे से होगी इससे। ऑल्सो फ्रेंड्स, नीचे अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। लाइक कर देना हमारी वीडियोस को, एंड अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। ऑल्सो फ्रेंड्स, हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, डेली के साथ साथ वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स भी अपलोड करते हैं, एंड टॉपिक वाइज वीडियो भी हम डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। टॉपिक वाइज जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, अवार्ड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, ये सारे टॉपिक, इंपॉर्टेंट डेज, ये सारे टॉपिक्स हम आपके कवर करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.